Divyang Bhai. I'm Divyang really Bhai, happy. welcome sir. I'm really happy to introduce Dr. Actor, Advocate, Professor Dr. Firdaus Shroff, who has accepted our invitation and ready to deliver us his signature training program from Manomanthan to Manoranjan. I am very happy to introduce. He has held many positions like director of M. Visvesvaraya Institute of Management Studies. He is presently working. He is board of director of Jardostian Cooperative Bank Limited, Mumbai, independent director of LIC Housing Finance Limited, Care Homes, Lions Club International he is associated with, and many more positions he has held. Uh, if I talk about his awards and achievements, then Professor, Actor, Advocate Professor Firdaus is is a motivational global motivational guru, and he has received his award for being a peace ambassador campaign. Moreover, he met with many international fame persons. uh, Lions Club has uh, given him a certificate and award for Corona Yoddha. Moreover, he is multifaceted talented actor. He has worked with many films like Mission Mangal, Made Life, Kamcho Namkin, Naikar, Darbar, Babaji Ka, Time Aayega, etc., where he has played various roles. uh, he received Special Educator Award of Recognition from Higher Education Forum on 10th Teachers Day event at Indian School of Design and Innovation. Uh, Moreover, he is very humble human being and a very effective trainer. So, on behalf of all the members of ISTD and on my personal behalf, I welcome you, sir, at this Friday forum, and I request you to start your training session. Thank you very much. Okay sir. Sir, thank you for your warm welcome sir and a lovely introduction. I think can you all hear me sir? Yes, sir. मैं सुनाई दे रहा हूँ सर. हाँ, sir. हाँ, sir. Yes sir ना. So I will take you through the journey of Mano Manthan to Manoranjan. Means I will be bringing out the poison in your mind. जो हम लोग कोविड का जो कर रहे हैं ना, कोविड इज नॉट द पॉइजन इज इन आवर माइंड. जो फियर है, that should be not there in our mind, because every time we are hearing all negativity. So I will try to change you, to bring you to the positive side. हमारे वायर भी रहते हैं ना, वायर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहते हैं जलने के लिए, पर हमारे में नेगेटिविटी इतनी भर गई है कि पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है. तो आई विल जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन हियर. Can you see the slide, sir? Yes, sir. Indian Society for Training and Development, Anand ka Yes, first yes. slide. Yes, sir. Yes, sir. So I will commence my session for today's Mano Manthan to Manoranjan. That is transforming the mind from turmoil to peace. So all negativity भर के जाएगा तो you will have turmoil, and when you leave aside, bring out the best in you, आप सब negativity निकालेंगे तो peace is already there. पर हम लोग वो दबा के रखते हैं, हमारे ऊपर negativity आ जाती है तो peace goes below. So what I will take you to the journey, inner engineering. First, I went to engineering college for the session. So principal said, you are doctor, advocate and all, you are not an engineer. So what type of training you will take for my engineering students? I told them, sir,
आई विल टेक इनर इंजीनियरिंग. एंड द प्रिंसिपल वाज सो हैप्पी. मैं बोला आप लोग क्या बाहर का नट बोल्ट टाइट करते हैं, सिखाने के लिए सिखाते हैं ना इंजीनियरिंग में, मैं उन लोग का अंदर का नट बोल्ट टाइट करता हूँ. सो आई तो लेट अस सी किसका किसका कैसा ये कर रहा है. तो सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज आपको आनंद दिलाना है. आप लोग सब आनंद में ही है ना? एम आई राइट सर? तलवारी सर ऑल आर इन आनंद आई थिंक आपका. यस यस. मेजॉरिटी. सो मैं आप आनंद ही आनंद कराऊंगा आनंद में. एंड वहाँ पे अपना दूध का डेयरी भी है उधर, चॉकलेट भी अच्छा मिलता है अमूल का. सो दैट ऑल्सो व्हेन आई कम देयर आई विल हैव दैट चॉकलेट आप लोग के साथ, और दूध भी पीऊंगा. सो दैट इज द थिंग. ब्रेन चर्निंग के साथ में लेके जो मनो मंथन इज एक्चुअली आपका, मैं ब्रेन चर्निंग कर. मनो मीन्स मन. आप लोगों ने शिव जी का समुद्र मंथन सुना होगा. हैव यू हर्ड अबाउट इट? उन्होंने समुद्र को पूरा ये साफ करके उन्होंने पॉइजन निकल के उनके कंठ में रख दिया था. सो ही इज नोन एज नीलकंठ. आपको पता होगा? एनीबॉडी अवेयर ऑफ इट? शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं. यस सर. He kept all right, no? So I'm going to transform the mind to peace. Then the brain churning will make you learn and think holistic development, positive thinking, change of attitude, time management, humility, to charge oneself, lead healthy mental, physical, and spiritual life. So these are the objectives of this. And last but not the least, taking you to the shikhar, that is the peak, Manoranjan. So flavor of humor, laughter, the best medicine also will be there from time to time. And you are going to hear Dr. Firdos is unstoppable. वो रुकता नहीं, चलते ही रहता है. वो आगे अगर आपको फिरदौस की उड़ान देखनी हो तो आपको आसमान और भी ऊंचा करना पड़ेगा. वो चलते रहते हैं, आसमान भी नहीं. स्काई इज ऑल्सो नॉट लिमिट. वो आगे चलना है. अभी आजकल का बच्चे लोग को स्काई भी नहीं चलना है, उससे ऊपर जाना है. सो शून्य से शिखर तक की सफर है मेरी. I was a waiter in Taj Mahal Hotel, Mumbai में. And from there I reached to global icon, guru, corporate director, actor, advocate, professor, doctor, PhD. तो ये सब सफर फ्री में नहीं मिलता है. You have to work for it. Hard work is only way you can give for success. So बहुत चीज काम करना पड़ता है. कोई भी चीज फ्री में नहीं. No meal is available called free in this world. So I always believe. अभी आप लोगों ने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब लोग जाते हैं. वहां पे जाके सब लोगों ने पैसा दिया, वो दरवाजा ही बंद हो गया. अभी हम लोग करें क्या? अभी आपको तो जो भगवान बाहर है उसको तो कभी किसी ने देखा ही नहीं. हम लोग जो मनुष्य है, दे आर द गॉड. अभी हमको कोविड में वो लोग की आके हेल्प किया. एम आई राइट सर? ह्यूमैनिटी ये जो आए, अगर हमारे राइट ना, नेबर्स लोग आए ये, तो हम लोग को उनको देखना है हमेशा. दूसरा है वही भगवान का दर्शन हो गया. मैं पहले जब भी मेरे स्कूल में फर्स्ट स्टेप, यस, बिलीविंग इन योरसेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स ऑल. डोंट बिलीव इन गॉड. सब आप अंदर है, वो आपके अंदर जागरूकता लाइए. देन यू विल सी रियल गॉड. बाहर कुछ नहीं. कहते हैं ना, संगीत सुनकर ज्ञान न मिला, मंदिर जाके भगवान न मिला. पत्थर को इसलिए लोग क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान न मिला. सो विश्वास हमारे लायक इंसान में रखना है. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग दूसरे इसमें रख रहे हैं. सो वी हैव टू लर्न दैट कि अभी तो सब देखो मंदिर, मस्जिद, सब गुरुद्वारे बंद हो गए, और हम उन्हें मनुष्य जो है हमारे साथी जो रहते हैं सोसाइटी में, ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव कम टू आवर रेस्क्यू. सो ऑलवेज ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ. आपके अंदर की शक्ति को जगाओ. आपने 3 इडियट्स देखे होंगे. The world's biggest problem is that intelligent people are full of doubts, and while stupid people are full of confidence. आमिर खान और इनका देखा होंगे ना आपने. 3 इडियट्स देखे कि नहीं आपने? बमन ईरानी का. हाँ, बमन ईरानी का. सो आई एक्ट एज बॉडी डबल फॉर बमन ईरानी. उनके साथ काम करते रहता हूँ. तो इसके लिए मैं बोला कि ये जो फुल है, स्टूपिड पीपल आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. सो जो बैक बेंचर्स है ना, दे आर द बेस्ट इनोवेटर्स.
Sir Abdul Kalam says. Backbenchers doesn't mean that they are. Actually, I was also sitting at the back last bench because there was no place in the front row. So मैं पीछे बैठता था. So that is also the thing ना. पूरा हाउसफुल था क्लास. तो बैठेगा तो किधर ना किधर तो बैठना ही है. So I am also a backbencher. So paying homage to our Dr. late APJ Abdul Kalam, former President of India. भारत हमारे अनमोल रतन है. We lost that. Student asked question to Honorable APJ sir. What is the meaning of success? So he very well replied. He says, जब आपका signature autograph बन जाता है, when your signature turns to autograph, you feel that you are a successful person. So हमारे generation को सिखा दो. Another very beautiful quote he says, हमारे generation को सिखा दो कि कार में आने वाला आदमी symbol of success नहीं होता और पैदल चलने वाले आदमी गरीब नहीं होता. What a beautiful thought. हम लोग में ऐसे ही सिखाया कि जो गाड़ी में आया वो बड़ा आदमी और जो पैदल आया वो छोटा आदमी. Never underestimate yourself any time. Always remember, never underestimate the power of common man. एक 5 रुपये का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने में काम आता है. Am I right? 5 रुपये पेन आपका 5 करोड़ का चेक लिखना. So never underestimate anything without which you cannot do anything. So अब्दुल कलाम सर कहते हैं मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी. किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है. अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है. He was also a paper seller. सुबह में साइकिल में जाके पेपर you have to wait for your times. Rightly. आएगा अपना भी टाइम आएगा. बोलेगा ना अपना टाइम आएगा. So it will come. So I also started as a waiter, a service देने वाला. फिर दोस्त डायरेक्टर बन सकता है. So slowly and steadily we have to grow up our ladder. आस्ते आस्ते करके ये करके आगे निकलना है. So that will be a take student. एक बार रूमी फिलोसोफर को क्वेश्चन पूछा गया, पॉइजन जहर का मतलब क्या है? रूमी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कोई भी वस्तु जरूरत से ज्यादा इन एक्सेस हो वो पॉइजन होता है. चाहे वो वेल्थ हो, धन हो, हंगर हो, भूख हो, ईगो अहंकार हो, ग्रीड लेजीनेस आलसीपन हो, लव प्यार हो, एम्बिशन हो, हेट्रेड हो और एनीथिंग. सो भगवत गीता ऑल्सो सेज ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो. एंड भगवत गीता में क्या है कि यू अर्न एज मच एज यू वांट. दैट इज अल्टीमेटली इट सेज वेदर यू आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन. आप कमा तो बहुत लेते हैं करोड़ों करोड़ों, पर आप एंजॉय नहीं कर पाते. सो व्हाट इज द सेंस इन गेटिंग द मनी? आप कमाओ और खर्चा भी करो एंड गिव टाइम. एंड ऑलवेज रिमेंबर ओनली बिजी पर्सन हैज टाइम, अदर काइंड हैज नो टाइम. अगर आप बिजी रहोगे तो मेरे को टाइम दोगे. राइट सर? I request everyone to mute their mic, please. म्यूट करो कोई इसका. ये आप कुछ कर सकते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में? यू कैन म्यूट द स्पीकर सर. सर किया सर. यू मे कंटिन्यू प्लीज सर. हाँ तो बीच में ये नहीं आएगा, कट कर दो. सो आपका जो है वो आपके ऊपर ही है सब चीज. तो जो भी संग्रह करते हैं पर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे तो फिर संग्रह करने का मतलब क्या है? कमाते जाते हो, उसके पास समय नहीं होता है. तो समय तो आप ही के पास है 24 आवर्स. आप ही को देखना है हाउ यू. कुछ चेंज दिखता है सर आपको अभी? एनीबॉडी? कैसा लग रहा है ये एलिफेंट में? क्या चेंज दिखता है सर? एनीबॉडी कैन टेल? माइक ऑन करो और बोलो. माइक अनम्यूट करो. हेलो. यस सर. हाँ एक जन ऑन रखो, आपका माइक ऑन रखो. कि व्हाट चेंज कैन यू सी इन दिस एलिफेंट? कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर, ज़ेब्रा जैसा. करेक्ट, ज़ेब्रा, बट इट इज एलिफेंट. मे बी एलिफेंट है. यस. बराबर है ना? तो लाइक दिस समथिंग चेंज, वी हैव टू डू समथिंग न्यू. काम करने में भी समथिंग न्यू, नहीं तो सेम टू सेम काम नहीं करने का. वी हैव टू डू समथिंग
new. Change लाना. Know yourself. The question is, why are we under stress? कोई बता सकता है? Why are we under stress? हम लोग स्ट्रेस में क्यों है? हेलो. Sir, Because of expectation. expectation. हाँ, एक स्पीकर ऑन रखो. जो बोलता है ना, एक दो जन ऑन रखो, so that I can ask you and you can reply. Why are we under stress? Because of expectations. Is of expectation. Very good. Anybody else? Because we Question? think about the same things again and again. अच्छा, same things again and again. बराबर. Because Then of what fear. else? Because of Fear. fear. बराबर. Fear से stress में होता है. Then और think. Because of uncertainty. Uncertainty. बराबर. कौन भाई? What's your good name, madam? Pooja Shah. आपका पूजा शाह जी. अच्छा, वेरी गुड. और क्या हो सकता है? बीजू का इशू થઈ શકે? विचार करो. Overthinking. Sometimes insecurity even. ओके, इनसिक्योरिटी थी. हाँ, somebody was saying. दूसरा कौन कोई बोल रहा था? Overthinking, sir. इस क्या बोला? Overthinking. ओवरथिंकिंग, ओवरडूइंग, सब चीज एक्सेस में. दैट इज व्हाट आई कॉल ना पॉइजन. वो चीज जो भी कुछ एक्सेस में हो, वो पॉइजन होता है. तो आई विल जस्ट शेयर विथ यू स्ट्रेस का मतलब. $1 million आंसर. बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग करके महल की तलाश कर रहे हैं. गौतम बुद्ध लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस, एंड वी आर इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस. हम लोग कौन से डायरेक्शन में जाते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? कहाँ Right, पे sir. छोड़ के गया पैलेस हम? हाँ, राइट ना? Right, कहाँ पे yes. छोड़, हाँ, कहाँ छोड़ी દીધો મહેલ તે અમે લોકો શોધવા જઈએ જ. એવને ત્યાગ કીધો મહેલ, તેથી એવને પીસ ઓફ માઇન્ડ ને બધું શોધ નીકળી, તો પીસ મળ્યો. તેથી સંગ્રહ કરે તો તમને આપણા એ છે માણસોની જે સોસાયટીમાં બધું એટેચમેન્ટ રહે ને તેનાથી દુઃખ થાય. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ દુઃખ. કઈ બી ચીજ એટેચ નહીં રહેવાનું. આપણે કઈ બી પૈસા, પ્રોપર્ટી, બધી ચીજમાં એટેચ રહીએ. મારા બચ્ચા, મારા એ એવરીથિંગ. સો એનીથિંગ, તમારું વોચ, કોઈ બી ચીજ में आप देखिए, if you are attached na, you will be miserable. Detach yourself. Everything is temporary, as it is everybody permanent thing in a temporary world. Even life itself is a temporary thing. और हम लोग बोलते हैं क्या है. एक बार मुझे किस्सा याद आया. When I was in school, Boys Town नासिक में पढ़ाई किया under our बेचन देसाई प्रिंसिपल. तो अब मेरे को उस समय घड़ी लेने के लिए पिताजी ने लेके गए. एनी मिलती थी उस समय, स्मगल होके आती थी घड़ी, बाहर ऐसा मिलती थी नहीं ओपन में. सो देयर वाज अ फैशन. तो एक घड़ी का ये तो फादर लेके गया. तो आई वाज जस्ट सीइंग, ये घड़ी नहीं, वो दो, ये घड़ी. हम लोग टेस्ट करते हैं ना. देन आई आस्क्ड द शॉपकीपर कि इसका गारंटी है क्या, कितना साल चलेगा? तो शॉपकीपर मेरे आंख में देख के बोलता है, तुम्हारा गारंटी है क्या? बोलता है. बोला क्या बात करता है, मेरा गारंटी मीन्स, मैं तो समझा परमानेंट ही है, इधर जाने का ही नहीं है. तो वो बोलता है, इधर लाइफ में तुम्हारा गारंटी नहीं तो घड़ी का गारंटी कहाँ से होगा? घड़ी तो चलते रहेगा, मेरा घड़ी बंद हो जाएगा. सो नेवर आस्क आपके यहाँ कौन सा गारंटी है क्या. जैसा लाइफ में है वैसा जियो, किसी का गारंटी नहीं. जो गारंटी देने वाला है उसका भी गारंटी है क्या? कौन गारंटी दे सकता है? सो जो गारंटी लेने वाला का भी नहीं और देने वाले का भी नहीं. सो लिव द लाइफ एज इट इज. क्वेश्चन आंसर्स मत करो. लाइफ इज वेरी शॉर्ट. वी हैव टू एंजॉय करो. एंड ऑलवेज वॉक एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प समवन. किसी की अगर जरूरत पड़े तो आप किसी के काम आ सके, वो बहुत महत्वपूर्ण है. हम अपने लिए तो खुद जीते लेते हैं, पर दूसरों के लिए जिए, वो ही भगवान है. तो दैट इज वाई भगवान हमें आदमी में ही देखना चाहिए. बाहर आप ढूंढने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा. सो धनतेरस का आप लोग करते हैं ना. रियल धन इज आवर हेल्थ. हम लोग धनतेरस में पूजा करते हैं वेल्थ की, सोना चांदी ये वो सब. ऑफ धन इज आवर हेल्थ. सो टुडे लेट अस प्रे फॉर द ईच एंड अदर फैमिलीज फॉर द बेस्ट ऑफ हेल्थ फॉर एवरीवन, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल. ये सब चीज के लिए आज हम लोग जिंदा है,
बिकॉज ऑफ ऑल ऑड्स, वही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, वही एक वेल्थ है। आज हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, सुन रहे हो, तो वही हम लोग का एक बड़ा वेल्थ है। वेल्थ बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ता है। ये जो आपने बनाया हुआ है फिजिकल स्पिरिचुअल, दैट इज वेरी एसेंशियल। आपका माइंड शुड बी स्टेबल, वो स्थिर होना चाहिए। तो कोई सोच रहा है कि धनतेरस पर कितना सोना खरीदना है, और कोई सोच रहा है कि सर्दियां आ गई है, सोना कहाँ है। यू फॉलो द दोनों सोना का मतलब। मैडम यू फॉलो? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो धनतेरस पे कितना सोना, सोना चांदी हीरे मोती वो नहीं है। अगर ठंडियों में बेचारा वो ढूंढ अजीत रहा का है। डायलॉग भी आता था ना सर। हाँ, क्या था, बताइए बताइए। अजीत क्या डायलॉग था? या उसका नाम होता था, वही चीज पसंद होती थी, वो सोना बता, और मोना वो के अपना, साथ सोना। हाँ वही, वो तो हाँ, माइकल साइकिल पे जाओ, हाँ। और याद रहे बॉस को सिर्फ दो चीज पसंद है, एक तो मोना, और मोना के साथ सोना। सोना मीन्स वेल्थ है, ये नहीं तो कोई ये नहीं करे। सो वो इसके लिए बोलता है। सो डॉन था वो समय अपना, ये जो है एक्टर अपना अजीत, सो उसके लिए बोलता है, तो डायलॉग था। सो जरूरत से ज्यादा सोचना कुछ छीन लेता है। एज मैडम वो सेइंग ना, हम लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वही का वही बारे में सोचते रहते हैं। वो नेगेटिव जो थॉट्स आता है ना, वो कट करो। एवरीथिंग यू हैव टू डू, इट इज वेरी सिंपल। एवरीथिंग इज सिंपल बट इट इज डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सब अभी आपको ही करना है, कोई सिखाएगा नहीं आपको। दिस आई एम गिविंग यू द थॉट, आपके अंदर अभी आस्ते आस्ते उतारना है, एंड अपने आप नेगेटिविटी निकल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ये पकड़ में ले लो। यू जस्ट जॉट डाउन विच एवर थॉट आपको जो टच हो जावे। सो आई हैव आल्सो डन दिस सेम थिंग। एवरी डे आई कीप कलेक्टिंग दिस थॉट्स एंड देन आई इम्बाइब इन माय माइंड, और हमारे से इससे अच्छा ये मिलता है, पॉजिटिव स्पिरिचुअल थिंकिंग। सो यू ऑल्सो ट्राई टू डेवलप इट, वेरी इजी थिंग है। एंड जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, वही उसके अंदर हमारे ऑलवेज ट्राई टू से ना, कोई भी कुछ भी चीज देना है। जनरली छोटा बच्चा रहे तो बलून बेचता है, तो मैंने एक मेरा फ्रेंड को बोला बलून लेना, वो बोलता है पागल हो गया क्या, मैं अभी बहुत बड़ा हो गया, अभी क्या फुग्गा से मैं क्या करूंगा। सो व्हाट आई ट्राई टू चेंज द एटीट्यूड एंड आई डू, मैं वो बलून बेचने वाला लड़के से बलून लेता हूँ, और मैं जाने वाला जो बच्चा है उसको बलून दे देता हूँ। सो आई एक्चुअली कीप बोथ द किड्स हैप्पी। वो भी बेचारा बेच रहा है, हम भी स्कूल में ऐसे बेचते थे कुछ ना कुछ, हमारे से कोई खरीदते थे तो हम कितने खुश हो जाते थे। तो सिमिलरली नाउ इट इज आवर टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। उनको देकर जाए, लेकर। सो इसी तरह आपकी जो अगर नजर बदलेगी, तो कहते हैं ना, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। सो दिस इज लाइक दैट। आपके नजर और सोच बदल गई ना, तो आप में बदलाव आ जाएगा। Another thing, I like you and I love you में डिफरेंस है। I like you, somebody says, and I love you, that is a difference दोनों के अंदर। तो ब्यूटीफुली आंसर्ड बाय बुद्धा। किसी ने पूछा आई लाइक यू एंड आई लव क्या है, बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप जब फ्लावर को लाइक करते हो, प्लक कर देते ना हम लोग रोज को, उसका उधर से प्लक करके तोड़ देते हो। आप जब लव करते हो तो आप उसको डेली वाटर देते हो। सो वेन एवर यू लाइक अ पर्सन, अ गर्ल और अ बॉय, उसको आप लोग डेली वाटर करके उसको प्यार आपस में बांटना चाहिए। एंड इट इज ऑलवेज गिविंग, नॉट टेकिंग। एंड ईगो जो आई है हमारा, ऑलवेज हम्बल रहे और नीचे रखना चाहिए। कभी भी अपने लड़के लोग को बताइए, आई से प्रॉब्लम होता है, ईगो। ईगो जब ऊपर आ गया तभी झगड़ा हो जाता है। ईगो हमेशा नीचे रखना है एकदम। कहते हैं ना, ऊंचा ऊंचा सब चल, नीचा चले न कोई, जो एक बार नीचा चले वो सबसे ऊंचा हो। हमें हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं, तो आज उनकी क्या हालत हो गई, आज वो जमीन पे है।
उसको नीचे आना ही है, क्योंकि बोट उड़ते उड़ते ज्यादा देर रह नहीं सकता, थोड़ा टाइम में नीचे ही आ जाता है। सो लाइक दैट नीचे रहना है, सो हम लोग को गिरने का भी डर नहीं रहेगा। सो ऑलवेज बी एट द बॉटम, सो नीचे रहना, ऊपर ऊपर उड़ना नहीं है। और जीवन में 3 मंत्र याद रखना। आनंद में वचन मत दीजिएगा, क्रोध में उत्तर मत दीजिएगा, और दुख में निर्णय मत लीजिएगा। सो दिस 3 मंत्रस आप ध्यान से रख लीजिए अपने पास कि ये सब चीज क्या करना है। जब भी आप आनंद में हो तो वचन मत दे दो, नहीं तो मैं खुश हो जाऊंगा और कुछ ना कुछ कर बैठेगा। सो ये 3 चीज आपने याद रखना है। और जब ठोकर खाकर भी न गिरो तो समझ जाना ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है आपका। कभी कभी हम बच जाते हैं, अरे बच गया मैं एकदम ठोकर लगने से, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऊपर वाला ने आपका हाथ थाम रखा है। सो हम लोग ऑलवेज ये करते हैं, पर हम लोग खाली ऊपर वाले को नाम नहीं देने का है, हम लोग काम हम लोग करते हैं और फिर ऊपर वाले का नाम देते हैं कि आप मेरा आज दिन बहुत खराब है। ऑल डेज आर सेम, पर हम लोग बोले ना आज मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है। अरे सबके लिए टाइम एंड ये तो सेम ही है डेली। व्हाट इज खराब है? मैं ही खराब हूँ, इसके लिए मेरे को खराब चीज दिखता है। इसके लिए बोलते हैं ना, एक बार कबीर जी ने पूछा जाकर एक देख कर आओ पूरा दुनिया में बुरा से बुरा आदमी कौन। तो मैं गया गया गया, ऐसा कोई नहीं मिला। फिर आने के बाद मैं कबीर जी के पास आया और बोला कि कौन मिला आपको, कौन बुरा आदमी है इस दुनिया में। तो कबीर जी का दोहे में कहते हैं कि बुरा देखने मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो खोजा दिल अपना, मिला मुझसे बुरा न कोई। तो दुनिया में खराब से खराब आदमी मैं हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो दूसरों को पॉइंट नहीं करना है, हमें एक उंगली उठाते हैं ना दूसरों के ऊपर, वो खराब आदमी है, मैं 3 गुना खराब आदमी हूँ। व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर एट समबडी, सो आई एम 3 टाइम्स एज बैड एज यू आर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, खराब और अच्छाई दोनों एक ही साइड के सिक्के में है। अपन देखते हैं ना हेड और टेल, सो एक चीज खराब साइड है, एक चीज अच्छी साइड है। तो आप जो अच्छी साइड है वो उसका देखो ना, उसमें खराब चीज क्यों देखना उस आदमी में। यू सी द गुड थिंग्स इन दैट पर्सन एंड ट्राई टू ब्रिंगिंग अप। अगर आपको कुछ बुरा कर रहा है, खराब कर रहा है तो so always try to see the beautiful, then you will see the beautiful things in the world. Everything is a beauty of its own. कोई भी चीज आप देखेंगे ना उसका आनंद उठा सकता है। एंड आप लोग तो आनंद में है, तो आनंद ही आनंद लेना चाहिए आपको, डरने की बात नहीं है। आपने आज खाना खाया तो थैंक अ फार्मर, वो ग्रो करते हैं ना हमारे फार्मर्स लोग जो है, उनकी भी अभी चिंता में है क्या करते हैं क्या नहीं, पर जो भी है उन्होंने खाना उगाया करके हम लोग आज बैठ के घर में खाना खा सकते हैं। आपने अगर खाना पीसफुल सोल्जर, बिकॉज वो लोग वहां पे पूरा फ्रॉस्ट होके कितनी ऊंचाई के ऊपर कितनी ठंडाई के लिए हमारी रक्षा करते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू आवर आर्मी एंड सोल्जर्स जो डिफेंस पर्सनल है हमारे। एंड आप भी ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि जिंदा रहते तो फिर मिलेंगे, मेरा मानना है कि आप मिलते रहे तो हम जिंदा रहेंगे। सो दैट शुड बी द आपका आइडिया ऑफ लुकिंग वे एट द थिंग्स पॉजिटिव साइड। तो आप अलग अलग रीत से देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ना पैसा लगता है ना खर्च लगता है, याद तो कीजिए बड़ा अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट फिरदौस को जरा याद तो करिए आप कभी भी, तो अच्छा लगेगा सर। तो फिरदौस का हमारा पारसी में मतलब है, फिरदौस मीन्स जन्नत, हेवन। एंड मैं फिर दोस्त हूँ, मीन्स किसी का दुश्मन नहीं, सबका दोस्त हूँ। तो फिरदौस को कभी कभी याद किया कीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके लिए सभी को याद करते रहना है हमें, एंड आनंद लुटाते रहना है। ये मेरे प्यास्तों दोस्त के ऊपर एक ये मेरे को याद आ गया कि रुक तो मेरे जजे को, मुझ में जान आ रही है, थोड़ा सा रख ले लो, दुकान आ रही है। सो जब भी हम लोग देखते हैं में दारू दुकान पीछे भागते थे, पर आईटी गुजरात तो दारू दी है तो दारू नहीं मिलेगा। हमारे इधर महाराष्ट्र में दारू है, दारू पीछे लाइन लगती है, लाइन नहीं लगेगी, दारू लेने के लिए लाइन लगती है। कोई बोल हाँ, दुनिया है, सब जगह धोखा है, लेकिन आप तो अच्छे बन सकते हैं, आपको किसने रोका? हम एवरी टाइम भी कंप्लेन अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, पर आप तो अच्छे बनो। व्हाई कीप सेइंग अदर्स? नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। सो हमेशा दूसरे के इसमें
झांकने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई भी कुछ भी करे, हम अच्छे बनना चाहते हैं, तो इट इज आवर सेल्फ दैट वी हैव टू डू। हे ईश्वर, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो तू नजर आया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। समझ में आया सर? हम लोग मैं हमेशा करते रहते हैं, तो जब भी आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैं को साफ किया तो तू नजर आया। सो ऑलवेज रिमेम्बर, मैं नहीं है, ये सब तेरा है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब अपना है, संसार का है। आवाज पर बराबर समझाय का? हेलो, हेलो, हाँ समझाइज के, समझाइज के बहन, कोई सुनाई देता है? Yes, sir. You are clear. Hello? Continue, sir. Please, please. Yes, sir, you are हाँ नहीं clear. कोई बोल, क्लियर ना? ओके ओके। जिंदगी भर ये भूख करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना पहुंचता रहा। तो हम लोग ऑलवेज ये करते रहना, धूल अपने अंदर है, उसको सफाई करो। आईने में तो दिखता है हम लोग, पर हम लोग आईना साफ कर दे, अपने आप को बदलाव नहीं लाता है। सो हमेशा अपने आप में अंदर बदलाव लाना है। एंड उम्र ऐसा है कि जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते हैं, पता ही नहीं चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई, टाइम और एज निकल गई कहाँ से, तो पता ही नहीं चला, और हम लोग सुख के कमरे में सब चीज लाने की कोशिश करते रहे। परमात्मा के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां मौन हो गए वहीं पर परमात्मा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आप खाली 1-2 मिनट मौन रखो, वहां पे आपको परमात्मा की प्रेजेंस नजर आ जाएगी। पर ऑलवेज हमारा माइंड शुड काम रखना चाहिए ऑलवेज। पर हम लोग का माइंड इतना चंचल है, भागते रहता है कि परमात्मा तो हमको कुछ दिखता ही नहीं। तो कोई सारा सराहना एप्रिशिएट करे या निंदा करे, कोई अप्रिशिएट करता है, कोई नॉन अप्रिशिएट करता है। लव हमारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने की अवसर। तो कोई आपको अप्रिशिएट करे, नहीं अप्रिशिएट करे तो भी अच्छा है, बिकॉज एक अपने को सिखाती है कि कुछ हम लोग कुछ अच्छा काम प्रशंसा करें तो उसको प्रेरणा मिलती है, और निंदा करे तो सावधान होने की अवसर। तो हम लोग क्या और अच्छी चीज कर सकते हैं। सो दोनों चीज, निंदा और ये दोनों सराहना अच्छा चीज है। बाद में इतना भी घमंड न कर अपनी जीत पर ये बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के है। तो वी थिंक के वो अपना अपना बड़ा बड़ा बात करता है, ये मेरा ये हो गया, मैं जीत हो गया, ये बनना, ऐसा ये मत कर कहते गालिब कि सर में तेरे जीत से ज्यादा मेरी चर्चे तो मेरी हार के है। सो ऑलवेज वी से ना, इट इज नॉट वेदर यू विन द गेम और लूज द गेम, बट इट इज हाउ यू प्लेड द गेम, उसके ऊपर जीत होती है। जीतने हारने वाला तो चलते रहने वाला है, दैट इज ओनली अ टाइम। पर आप कैसे खेले, मैदान में भी जो खेल के भी ये करता है, वो बोलता है ना, हर आदमी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हार कर भी यू कैन विन, ऐसा नहीं कि जीतना ही है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानते हैं, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानती है। हर जगह टेम्पल है, लेकिन ईश्वर तो उसी के है जो सर झुकाना जानते हैं। सो ईश्वर आपको कभी मिलेगा, मैंने कहा, जब मौन में आप खड़े हो जाओगे तभी, और आप जब भी झुकना जानते हैं, सर नीचे, ऑलवेज बाउ डाउन, नीचे जमीन पे। तो हमेशा आपने देखा होगा, जब भी ये आता है, तूफान आता है, तो झाड़ उखड़ जाते हैं। वो किसके लिए? क्योंकि वो उसका सामना करता है तूफान का, सो उसको उखाड़ कर फेंक देता है। एंड जो घास देखा होगा आपने, घास, ग्रास, वो कैसा है, तूफान के साथ बेंड हो जाता है, जाने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। सो बी लाइक अ ग्रास, फ्लेक्सिबल, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर आप झाड़ के जैसा अटल रह गए कि नहीं मैं ये हूँ, तो तोड़ डालेगा। सो लाइक दैट वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल समटाइम्स। एंड उसमें तो आप झाड़ के जैसा खड़े रहे में आपकी समझौता नहीं है, आपका नम्रता जो है, सर झुकाना है, वो आपका बहुत बड़ा बड़ापन है। तो ऑलवेज नीचे नीचे रहना है, ऊपर उठते नहीं रहना है। लर्निंग फ्रॉम इंस्पायरिंग पोएम है हमारे, आप लोगों ने सुना होगा, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अगर आपको भक्ति होनी है भगवान के लिए, तो आपको मीरा की जैसी भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवान आपके पास आएंगे। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के खिलाते नहीं। जब भी सबरी बैर खिलाती थी अपने राम को, तभी वो
चकती, हम लोग जनरली जूता बेर खाते नहीं, ये फेंक देते, पर शी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू सी कि मेरे मालिक के लिए खराब और ये खत्ते तो ये नहीं है कि बेर, तो शी वाज गिविंग इट टू दैट। तो दैट वाज द लव एंड अफेक्शन। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं? यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशोदा की जैसी ममता होनी चाहिए आपको। तो उस समय जैसे माँ की जो कहते हैं ना, एक ने तुझको जन्म दिया और दूसरे ने तुझको पाला, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। सो लाइक दैट यशोदा के जैसे उसको सुनना है। एंड कौन कहते हैं कि भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं। सो इसलिए आपको सब चीज ये करना है, भगवान आपके पास आना है तो सभी इसकी भक्ति करना है जैसे उन लोगों को सिखाया गया है। और एनी वन ऑफ यू नो द रीजन? हम लोग सभी कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। जब भी हम लोग जिंदा है तभी कहते हैं ऑलवेज, आप मर जाते हैं तभी बोलते हैं रेस्ट इन पीस। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि लिव इन पीस। जब भी हम जिंदा है तभी कोई नहीं बोलता है। कोई कहता है आप में गुजरात में लिव इन पीस? सर सब लोग बोलेगा जाने के बाद रेस्ट इन पीस, RIP। हम लोग ऑलवेज लिव इन पीस करके वो मंत्र रखना चाहिए। अभी जाने के बाद तो कोई सुनता नहीं, वो सुना ही नहीं देगा उनको। इससे अच्छा व्हेन ही इज लिविंग उसको लिव इन पीस करने दो, उसको त्रास मत दो। तो इसके लिए पीस, आप लोग दूसरा भी अच्छा पीस में रहेगा तो आप लोग भी पीस में, आपका नेबर भी में रहेगा, आप भी पीस में। सो ऑलवेज लाइक दिस होना चाहिए। और मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। सो ऑलवेज समझो, जो भी आदमी जिंदा है उसके जाने के बाद तो कुछ नहीं होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक गुड रिलेशनशिप्स व्हेन द पर्सन इज अलाइव। एंड कुएं में उतरने के बाद बाल्टी बकेट झुकती है, ऑलवेज नीचे जाने के बाद वो झुक जाती है बाल्टी, लेकिन झुकने के बाद भर कर बाहर निकलती है। जैसे ही हम लोग अंदर बाल्टी को डालते हैं वो झुककर अंदर जाती है और पानी ऊपर लेके बाहर आ जाती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अगर आप झुक जाओगे बाल्टी के जैसे तो आप पानी और कुछ न कुछ आप लेकर वापस उठ सकते हो। सो ऑलवेज झुकना रहना है। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, और सबसे आसान काम है सबसे रहना। सो यू हैव टू बी हैप्पी विथ एवरीबॉडी। सबको खुश करने का ये नहीं है, पर एटलीस्ट यू आसान काम है सबसे खुश रहना, तो एटलीस्ट यू बी हैप्पी विथ अदर्स। सो दैट इज द मीनिंग। एंड खाली बर्तन लेके आया हो तो ये मत समझना, जब भी हम कोई खाली बर्तन लेके आता है तो वो मांगने वाला होगा, ऐसा करके उसको भगाता है, बाहर जा मांगने आया है। तो खाली बर्तन लेकर आया हो तो ये मत समझना मांग के आया हूं, मांगने आया हूं। मैं सब कुछ बांट कर आया हूं, मैं सब कुछ देकर आया हूं, इसलिए मेरा ये खाली बर्तन है, मैं लेने नहीं आया हूं। सो दैट एटीट्यूड शुड बी देयर कि आपको देना है, सब चीज लेना नहीं है। तो इसलिए एक समुंदर और झरने की कहानी याद आ गई मुझे। समुंदर झरने को कहता है तू छोटा छोटा रह के वहां क्या करते रहता है, तू मेरे अंदर समुंदर में आ जा और तू भी मेरे जैसा विशाल बन जा। तो झरना बहुत सुंदर जवाब देता है कि मैं छोटा रहने से मीठा रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, ताकि तुम्हारे में बड़ा होने से खारा होने से। सो मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा तो आई विल बिकम सॉल्टी। इंस्टेड ऑफ आप छोटा रह के स्वीट रहो, मिठास होना चाहिए। तो छोटे में रहने में ही बड़ा आनंद है, बड़ा बड़ा होने का जरूरत नहीं। आप विशाल हो जाओगे समुद्र के जैसा तो यू विल लूज द इम्पोर्टेंस, आपका जो स्वीटनेस है वो खारा हो जाएगा। सो छोटेपन में ही बहुत बड़प्पन है। तो सभी जन अपने बच्चे लोग को भी सिखाइए कि बड़ा बड़ा करके कुछ होना नहीं, जो भी काम कर रहा है वो छोटा भी, एंड उसको जो पसंद है वो करने दो। हमें जो पसंद है वो नहीं करना, उसे जो पसंद है लेट हिम डू इट एंड ही विल टेक इट फर्दर। और उसको साथ दो, मदद करो जो कुछ करना चाहता है। तो क्या लुटेगा जमाना हमारी खुशियों को, हम तो खुद हमारी खुशियां दूसरों पर लुटा कर जीतते। सो अपनी खुशियां दूसरों पे लुटा दो तो फिर हमारी दूसरी जमाना हमारी खुशियों को कैसे लूट सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव, कभी भी गिव गिव एंड गिव करना चाहिए। तो आप लोगों ने श्री श्री रविशंकर का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सुना है। वो किस में है? व्हाट इज ही इनटू? उसका टैगलाइन क्या है?
Art of living हाँ, is an art of living. क्या बोले? Sri Sri Ravi Shankar, right? Art of living. हाँ, There is आर्ट a ऑफ लिविंग। one more who is into the musician. सर सर अच्छा, सर श्री रविशंकर प्रसाद तो मिनिस्टर ऑफ लॉ नहीं है? श्री मिनिस्टर ऑफ लॉ अलग है, ये उनका बेंगलोर में वो मोटिवेशन कहते हैं ना, बेंगलोर का आर्ट लिविंग। रविशंकर लॉ ऑफ ए, तो श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग में है। आप लोगों ने श्री श्री फिरदौस श्रॉफ का नाम सुना है? सुना है किसी ने? हेगड़े सर, हैव यू हर्ड अबाउट श्री श्री फिरदौस श्रॉफ? नहीं सर। हाँ, टीचर, अच्छा, तो श्री श्री, अभी याद रखना हेगड़े जी, श्री श्री फिरदौस श्रॉफ इज आर्ट ऑफ गिविंग। मैं देने में मानता हूँ, उनका जैसा आर्ट ऑफ लिविंग किया है वैसा मैंने श्री श्री फिरदौस श्रॉफ का मतलब है आर्ट ऑफ गिविंग। तो हमेशा हमें देते रहना है। तो इसके लिए अभी झरना जो है वो देते रहता है और समुद्र जो है वो ग्रहण करता है, इसलिए वो खारा है, एंड झरना देता है इसलिए वो मीठा है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव, देन आपके अंदर से मिठास निकलेगी। सो एक बार गुरु नानक जी ने किसी ने पूछा, 4 छिद्रों वाले घड़े को पानी में कैसे भरेंगे? मीन्स 5 होल्स है घड़े के अंदर, 5 होल है, उसको पानी कैसा भरेगा? तो सब पानी निकल। नानक जी ने मुस्कान से साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में ही डूबी रहने की, तो संसार क्या बिगाड़ लेगा? So always if at all you have got weakness, क्या लगता है? आपके पास कुछ वीकनेस है, डरो मत, वो पूरा अंदर डूब के ही रहना दो, वो भरा रहेगा घड़ा के जैसा। सो हमारी ये सब चीज उसमें से निकालनी है, अच्छी चीज। तन की जाने मन की जाने, है, एंड वो ही ले, जरा भी डरने की बात नहीं है। अगर वो कोविड में आपको लेने वाला है तो कोविड में ही लेके जाएगा, ऐसा कोई हमें बचा नहीं सकता है। अगर उसको नहीं लेना है कोविड में तो नहीं लेके जाएगा आपका। तो उसके लिए आप हर रोज मरते मरते मत रहो, इससे अच्छा आप जिंदा रह के आनंद लो, आनंद ही आनंद में। आप रोज मरते मरते मैं मर जाऊंगा, ये होएगा, वो फिक्र मत करो। बिकॉज आपने ऊपर वाला का जैसे बोला ना, जो आपके घड़े में छिंद है, होल्स है आपके घड़े में, वो सब निकाल दो, पानी के अंदर, भगवान के अंदर ही डूब जाओ, तो आप भरा ही रहेगा। सो दैट इज व्हाट द मैसेज आई वांट टू से। आप लोग भक्ति में अंदर चले जाओ, विचार नहीं आएगा आपको। अगर आपका दोस्त तरक्की कर रहे तो कहना वो मेरा दोस्त है, अगर आपका दोस्त मुसीबत में हो तो कहना मैं उसका दोस्त हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर, मुसीबत के अंदर हम लोग काम में आना चाहिए, मैं जो हूँ दोस्त के लिए। अगर वो तरक्की करे तो कहना वो मेरा दोस्त है। सो अच्छे दोस्त सफेद रंग जैसे होते हैं, सफेद में कोई भी रंग मिलाओगे तो नया रंग बन सकता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बन सकता। सो दोस्तों को रखो, फिरदौस को रखो आपके साथ, तो आपकी दोस्ती बनी रहेगी और अच्छा वातावरण रहेगा। सो आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। हमारे जैसे हेगड़े साहब हमारे प्रिय दोस्त है, हमारे मित्र है, तो वो भी अच्छे रहते हैं, तो हमें आनंद लगता है। और दोस्तों आगे देखो, फिरदौस ने बुलाया तो सर इज प्रेजेंट हियर, सो वो एक अच्छा लगता है कि आने के लिए, तो दोस्ती का ये करने के लिए तो आप अच्छे रहना। सो हवाओं से कह दो अपने काबू में रहे, क्योंकि हमारी नारी हवाओं से नहीं हौसलों से उड़ान करते हैं। ये मैंने एक वीर नारीज के लिए एक सेशन लिया था, तो एक्चुअली दे हैव गॉट दैट थिंग, तो दे आल्सो एंजॉयड वेरी वेल। सो वीर नारियों और ISTD भी हवाओं से नहीं हौसलों से उड़ान करते हैं। सो यू हैव टू रखना, हौसला रखना है। सो ऑल द टाइम देन यू कैन कीप डूइंग गुड थिंग्स। अगर आपको हमारी ISTD की भी उड़ान देखनी हो
तो आपको आसमान और भी ऊंचा करना पड़ेगा। ISTD लोग भी अगर उड़ान करते हैं तो भी उसका आसमान और ऊंचा करना पड़ेगा। अपना डालवाड़ी सर का प्रेसिडेंटशिप के अंडर आई थिंक यू विल हैव टू वाइडन दैट स्क्रीन। अभी स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट। एम आई राइट डालवाड़ी सर? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. सर सुन रहे हो? हाँ, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. यस सर। सो जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपना किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, जैसे हमारे वीर जवान के बजती रहती है। ये जो वीर नारिस के लिए लिया था तो जवानों के लिए था, तो तभी ऐसे ही रहना भाई। आप कोई भी किरदार कर लो, लोग स्टेज के ऊपर एक्टिंग करने को आते हैं तो उसके बाद भी जब भी पर्दा बंद हो जाता है उसके बाद भी तालियों की घगराहट होनी चाहिए, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। बिकॉज शेक्सपियर जी कहते हैं ना, वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा स्टेज है, उसमें हम लोग करते रहते हैं वो बड़ा स्टेज के ऊपर। तो ये छोटे नीड के ऊपर कहा गया है कि आपका रोज का जो किरदार है, एवरी डे आपका जो परफॉर्मेंस वो अच्छा करो कि सब लोग आपके लिए तालियां बजाते रहे। एंड लर्निंग फ्रॉम फिरदौस, नोइंग योरसेल्फ, कि पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। तो हम लोग को बदलने के लिए आप दुनिया मत बदलाव लाओ, आपके अंदर बदलाव लाओ। महात्मा गांधी सेज इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड चेंज, यू बी द चेंज। तो आप अपने अंदर का बदलाव लाइए तो अपने आप दुनिया बदल जाएगी। तो रहने दे मुझे इन अंधेरों में वो गालिब, गालिब साहब कहते रहने दे मुझे इन अंधेरों में वो गालिब, कमबख्त रोशनी में तो अपनों के असली चेहरे नजर आते। तो ऑल द टाइम वी हैव गॉट है ना पर्दा, पर्दा एक असली और एक नकली। वो एक था ना अपना साधु और शैतान पिक्चर, वैसा था, सुबह में साधु रात को शैतान। सो लाइक दैट पर्दा रहता है। सो पर्दे नहीं रखने का, एक ही इसमें रखो। वी हैव गॉट पर्सनालिटी ना, स्प्लिट पर्सनालिटी, तो वो नहीं रहना है। सो कोई इंसान इतना गरीब है कि उनके पास सिर्फ पैसा ही है। मैंने एक बार एक इंसान को देखा तो क्या है, इतना गरीब है वो कि उसके पास सिर्फ पैसा है, दूसरा कुछ नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पैसे से कुछ आपको ये शांति सुख और ये नहीं मिलेगी। पैसा इज नॉट द अल्टीमेट। इससे अच्छा आप दोस्तों रखो, आपके पेरेंट्स लोग को देखो। आपको अभी भगवान के पास सब मंदिर मस्जिद जाना भी नहीं पड़ेगा। आपके अगर पेरेंट्स है उसके ही पैर छुओ तो यू विल बी एट लॉर्ड ऑलमाइटी। वो आप अपने आप भगवान के पास नमन हो जाएगा। सो वो सब देखना है हमें। पहले हमारे जो घर में है उसे देखते जाओ और फिर बाहर का सब चीज देखने के लिए बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रियल मतलब ऑफ मास्क क्या है, कोई बता सकता है सर? अभी मास्क का मतलब क्या है सर? हेगड़े सर? नहीं सर। व्हाट इज द, कोई भी आपका ISTD का है? मैडम, मैडम इज देयर? मैडम कैन यू टेल मी रियल मास्क का मतलब क्या? हम लोग मास्क क्यों पहनते हैं अभी? हेलो, कोई भी बता सकता है? डर मास्क के क्यों मारे, पहनते हैं? डर के मारे, डर के मारे। अच्छा, डर के मारे। और कोई? मैडम, मैडम किधर है? इज शी देयर? हेलो। हाँ बोलो। यस, काय के लिए पहनते हैं? जी सर, हम मास्क इसके लिए पहनते हैं कि हमको जो कोविड जैसी जो महामारी है हाँ, उससे हम बच सके और वो संक्रमण को हम अटका सके, जिससे कोविड जल्द से जल्द पूरे वर्ल्ड में से जा सके। इसके लिए हम मास्क पहनते हैं और हर एक इंडियन नागरिक नहीं बल्कि जो भी हाँ, वर्ल्ड में जितने भी सम पीपल है उन सबके मास्क पहनना चाहिए, जिससे हम कोविड के सामने रक्षण कर सके अपने आप की हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम को। और जो अपने अंदर हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम एकदम वो क्लियरिंग से हो सके, इसके लिए हम अपनी मास्क पहनते हैं। अच्छा, कौन, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अहमद कबीर एक काजी है और मैं डिस्ट्रिक्ट आनंद से उमरेड तालुके से हूँ। उमरेड तालुका से। अच्छा, वेरी वेल सेड। जो कहा बिल्कुल सही है ऐसा। पर मेरा सेशन के अंदर जो मैं मास्क का देने जा रहा हूँ। हेलो सर, आपकी तरफ से मास्क की डेफिनेशन क्या डिस्ट्रॉइट कर दो? हाँ, मैं वही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जी आप सर, सुन रहे हैं? सुनाई दे करिए रहा है? करिए। यस सर, हाँ, सुनाई दे रहा है, करिए। मेरा तरफ से मास्क जो हम लोग क्यों पहन रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अभी किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आप ओहो। सम
आप Yes, yes, nice argument, sir, nice argument. अभी मैं मूड छुपा के Very, जाता हूँ इसी वजह से। नहीं नहीं, very good argument. Yes, yes, very good argument. यस यस गुड ना। हाँ, तो इसके लिए मैं बोला आनंद में लाना है आपको। ये जी तो सर, तो डॉक्टरेट बट के लिए ऐसा आपने भी बताया। हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम बोलो। हमारी रब के अंदर हमारे भगवान से हमने मुंह मोड़ लिया, इसके लिए भगवान ने हमको मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। नहीं, हम लोग सभी किसी से पैसा, मैं पहला पैसा लेके भाग जाता था ना, तो हेगड़े साहब मेरे पीछे आते थे। तो अभी मैं मुंह बंद छुपा कर जा रहा हूँ, तो हेगड़े साहब को मालूम नहीं पड़ता कि श्रॉफ ही है, तो अभी मेरे पीछे नहीं आते सर। यस यस यस, इसके लिए मैं मास्क पहन के घूमता हूँ। इट इज तो सो like- नाइस क्वेश्चन सर, एंड अच्छा है ना? आई लाइक दिस डॉक्टर फिरदौस टी अरे सुरफा। शर्मा नहीं, श्रॉफ। थैंक यू वेरी मच। श्रॉफ। ओके ओके, शॉर्ट। हाँ, तो इसके लिए थैंक यू, सर- यू एंजॉय। ओके हाँ, तो दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी कौन है बताओ? सर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन है वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे को छोड़ के। नहीं सर, आप किस बेस पर ऐसा अपने डिस्ट्रॉय करते हो कि दुनिया के अंदर सबसे ईमानदार आदमी कौन है? बट मैं मेरी ईमानदार, रिसेंट डेफिनेशन दूं। यस हाँ, सर, बोलो। मैं मेरी रिसेंट डेफिनेशन दूं कि सबसे ज्यादा ईमानदार हाँ, कौन बोलो। है, तो माई सेल्फ, तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारी जात सबसे ज्यादा ईमानदार है। अच्छा, वो दो चीज कराती है अच्छा, तुमको, आप एक पॉजिटिव थिंकिंग ओके। और एक नेगेटिव थिंकिंग। अच्छा, तुम माई सेल्फ, तुम्हारी जात, तुम्हारा सेल्फ। अच्छा, ऑल ईमानदार सब लोग, यस तुम्हारा यस सेल्फ। और कोई बता Yes. सकता है दुनिया में और कोई है? दूसरा डेफिनेशन कौन है, कोई बताओ? सबसे ईमानदार आदमी कौन, कोई है? जो खीसे में पैसा नहीं रखता वो सबसे ईमानदार आदमी है। अच्छा, खीसे में पैसा नहीं रखता है। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा वो सबसे- अच्छा, वो भी ईमानदार, बराबर है। खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो मेरे डेफिनेशन है, अभी मैं सुनाता हूं, जैसा मास्क का सुनाया वैसा। तो दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी कौन है मालूम है? पान वाला। वो आपको कह के चूना लगाता है, साहब कितना लगाऊं, और बाजू वाला कितना लगा के जाता है पता नहीं चलता है। तो ईमानदार आदमी हुआ कि नहीं? एकदम राइट, यू आर राइट। सो वेरी गुड सर, सो वेरी गुड, तो मीनिंग सो नाइस, इसीलिए- रियली अमेजिंग। इसके लिए Very मैं amazing. नया चीज करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ इनोवेशन। सुपर से भी सुपर। हेलो, हाँ सुपर जी। से भी सुपर है आपका डायलॉग। अरे बाप, थैंक यू सर। आप आनंद ले रहे हैं, आनंद में तो बस आई एम हैप्पी। इसके लिए मैं करते रहता हूँ, बहुत सारे सेशंस लेता हूँ। ये अभी मेरा 70th सेशन है वेबिनार। अरे योर सेशन इज वंडरफुल, वी सैल्यूट thank यू, you, ब्रेव sir. वॉरियर, यू आर ब्रेव वॉरियर, अरे थैंक यू मिस्टर नौशीरवान, थैंक यू सर, यू आर माय ब्रेव वॉरियर। वेलकम, यू आर कनेक्टेड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। हमारे पारसी नौशीरवान स्टेट है, वो भी आए, सुन रहे सर, सो इट इज वेरी गुड। आवाज आवे? हेलो सर, आई सो वेरी सैड कि सबसे कम उम्र का मैं अकेला स्टूडेंट हूँ तुम्हारे सेमिनार के अंदर, आपके सेमिनार के अंदर। अच्छा, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आई कुड नॉट, बाद में मैं देखता हूँ। मेरा पीपीटी You चल रहा है are- ना, इसके बाद You are God in human day. Hello, thank you, sir. You are हाँ, बोलो। God in human form. You are God Oh. form. अच्छा, थैंक यू सर नौशीरवान जी, Thank you. थैंक यू। तो मैं कह रहा था, अभी दुनिया में आने के और जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब भी आप आए दुनिया में तभी भी मुहूर्त नहीं, अब जब भी आप जाएंगे तभी भी मुहूर्त नहीं होगा। लेकिन आदमी जिंदगी भर मुहूर्त देखते रहता है, वो क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। कि आज अच्छा दिन है, मंगलवार है, सोमवार है, गुरुवार, एवरी डे इज अ गुड डे। आप जब भी कुछ शादी किया, कुछ काम किया, दैट इज अच्छा का अच्छा दिन है। ऐसा कोई मुहूर्त देखने का तो कुछ सवाल नहीं उठता है। एवरी डे इज अ गुड डे। ये सर है ना, आप ये समझ जो में आया? प्रथा है ना सर, ये जो हाँ। मुहूर्त की जो प्रथा है ना, वो हाँ, इंसानों ने डेफिनेशनली की है, बनाई है। करेक्ट फॉर लेकिन आवरसेल्फ। लेकिन सर ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
दुनिया में जितने भी दिन है ना वो सब सर के ही होते हैं, सब अच्छे ही दिन होते हैं। हाँ, ऑल डेज आर गुड ना, उसमें क्या अच्छा और बुरा हम लोग खाली, पर हाँ। अपना मन की शांति के लिए सब बनाए हुआ है कि ये मुहूर्त वो मुहूर्त, ठीक है, किसी को अपन ये नहीं करते, पर दिस आर ऑल अपन वी फॉलो ब्लाइंडली। जो एक आदमी पहले चलते रहता था उसके पीछे पीछे हम चलते रहते हैं। सो दैट इज द थिंग वी कीप फॉलोइंग। पर सर ये है ना, ये सर एकदम गलत है। अगर कोई आदमी चलता है और उसके पीछे अपने चलते हैं तो ये गलत है। अपने खुद की एक अलग लाइन बनाने की हो, खुद की जात की एक अलग लाइन बनाने की हो, खुद के सेल्फ की एक अलग लाइन बनाने की हो, तो तुम तुम्हारी लाइफ अपने में मन आगे की बढ़ सकते हो। शांति होती है कि आज अच्छा है, चलो का लिए है, उनके लिए अच्छा है, सुख निकालता, तो सबके लिए एक ही चीज है ना, बट स्टिल फील कि हम लोग को आनंद मिल रहा है, तो कहा इज नथिंग रॉन्ग। और मैं खाली आपके पास सोच रहा हूँ कि ये सोचने हम लोग करते हैं। दशहरा हुआ था, संस्कृत रिमूव 10 बैग्स विद इन यू, अंदर बैठे ना 10 माथे वाला, 10 हरा बोलते हैं ना, अहंकारा, अमावता, क्रुअल्टी, इनजस्टिस, वासना, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मर्डर, प्राइड, मत्सरा, जेलसी, अटैचमेंट एंड स्वार्थ, सेल्फिशनेस। तो ये सब चीज 10 आपके अंदर से बाहर निकल जाएंगे ना, तो आप यू कैन एंजॉय द दशहरा का। सो दैट इज द 10 बैड क्वालिटीज। ये जो हम लोग का 10 डेज आते हैं हमारे, जहाँ खाली डांडिया नहीं खेलने का है। आप लोगों में डांडिया खेलते हैं ना गुजरात में, डांडिया नारती उतारो रे संतोषी माता की, बराबर डांडिया रमे ने गुजरात में? Yes, sir. हाँ, તે ખાલી દાંડિયા નહીં રમવાના, એની અંદરથી એક એક one ડે ને પહેલે દારામાં 10 દા પહેલે ઈગો બહાર કરી નાખો, સેકન્ડમાં ક્રુઅલ્ટી બહાર કરો, લાઈક ધેટ યુ હેવ ટુ જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ કે આજે મેં આ કરી નાખ્યું, આ કર્યું, એંગર, ગ્રીડ, સેલ્ફિશનેસ, તારે આ 10 સાફ થઈ જશે અંદર, સો યુ બીકમ પોઝિટિવ. સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ ટુ બી ડન, એન્ડ સેલ્ફ જ કરવું પડશે, કોઈ કરી નહીં શકાય, તમને કોઈ શીખવી નહીં શકશે. ધીઝ આર ઓનલી માઇન્ડ બ્લોઈંગ, એવરીથિંગ ઇઝ વિધિન યુ. मैं कहूँ ना, आई ऑलवेज टेल कि आई हैव नॉट कम हियर टू टीच, मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, आई हैव जस्ट कम हियर टू अवेयर यू. आपके अंदर ही है, उसका जागरूकता ला रहा हूँ, सम ऑफ द गुड थॉट्स, तो आपको भी पता चले कि क्या है में अपने इतना। सर मास्क का फुल फॉर्म नहीं बताया, पता है ना कृष्णन? सुना नहीं आपने? नहीं, फिर से बताओ ना। हेलो, नहीं, हमने, मेरे हिसाब से मैंने क्या बोला, हम लोग मास्क क्यों पहनते हैं? क्योंकि आजकल अभी हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसके लिए वी आर वेयरिंग द मास्क, नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड. आप समझ में आया? हाँ, मैं सोचा कुछ एब्रिविएशन दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं, इसका अनदर टाइप ऑफ, ये लाइटर साइड, उसमें दिया मैंने. सो आप विजयदशमी का सिग्निफाई 10 बैड क्वालिटीज, हैप्पी दशहरा, and you should never enter your head things and kill them before they destroy you. 10 जो है आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए, उसको पहले से ही बाहर निकाल दो. दिस इज व्हाट इट इज टू. एंड आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना हो तो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो. दुनिया में मौज इतनी है कि हम लोग ढूंढते ही नहीं, हम लोग इसमें नेगेटिविटी में बैठे रहते हैं, फिर बोलेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी हूँ. दुखी नहीं, आप सुख को देखिए, वह उतना सुख आपको मिलेगा तो दुख अपने आप अंदर ही चले जाएगा. सुख और दुख का तो ओनली सिंबॉलिक है, वो कोई सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है. आप अगर समझेंगे तो सुख, आप अगर समझेंगे तो दुख, आपके ऊपर है. सो आपके विचार को बदलो. तो बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ मेरे क्लासेस में मैं देता हूँ. आप लोग BCom देते हैं ना, यंग स्टूडेंट है ना, आपका क्या किया है? BCom किया है. यंग स्टूडेंट लिसनिंग कौन है हमना सेशन में? Are you listening? Who is the student here? Youngest? हमने बोलियो ना, समझन पड़ी? Sir, I think he is not there. We should continue. Because we, Okay. Left. because we are running out of time. It is almost 1 hour now. 1 hour ना, કેટલા મિનિટ છે હવે મને બંધ કરવા? We have 10 minutes to wind up, so that we can have Wind up. this interactions. Yeah. Okay. सो बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ इज BCom है, उन लोग का डिग्री देते हैं, पर मेरे क्लास में BCom टू सर्व विद ग्रेटिट्यूड.
That is the best thing in spiritual life में. And entrepreneurship is a passion to learn, fire in the belly, be job creators and not job seekers. So always try to be entrepreneurs में. और अभी आजकल कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत. So you have to be self-sufficient. And everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. अगर स्वर्ग में जवान हो तो एक टाइम तो जरूर पड़े था मुझे. तो दैट इज द रीजन कि अच्छी चीज अगर होनी है तो उसके लिए टाइम लेगा. प्रभु खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते. प्रभु ने अंदर मग्न थई जवानू. जैसे मैंने बताया ना गाने में, ये मग्न थई जाओ, आप प्रभु ने अंदर उतरी जाओ. खोजवाती नहीं मिलते, खो जाने से मिलते हैं. एंड डायनामिक पर्सनालिटी जो इसमें दिखाया है भगवत गीता में, इट हैज शोन दैट श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था एंड उसका इंडेक्स फिंगर ऐसा थे. There is no beginning, there is no end. No beginning, no end. Hello. Sir, Hello. continue, please, sir. No beginning. Continue. No beginning, no end. इसके लिए आई जो इंडेक्स फिंगर है ईगो का, ऑलवेज इट शुड बी लाइक दैट, ऑलवेज नम्रता से. एंड माइंड शुड ऑलवेज बी काम. दिस शुड बी डेवलप. आपका जो डेवलपमेंट क्वालिटीज दे रहा हूँ, पर्सनालिटी, हाउ कैन यू बी डायनामिक पर्सनालिटी. तो आपका माइंड शुड ऑलवेज बी काम, बॉडी शुड बी एक्टिव, एक्सरसाइज करो, चलो, स्विमिंग करो, जो भी करना है, सो दैट यू बर्न योर कैलोरीज. एंड योर इंटेलेक्ट शुड बी अलर्ट. सो व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस सेशन, योर माइंड इज हियर, बॉडी इज हियर, पर माइंड अलग जगह पे नहीं. सो इंटेलेक्ट जो है बराबर समझने का, कोई भी हो, कोई भी वक्ता है या स्पीकर है, उसमें से कोई ना कोई चीज तो वो देखा जाएगा. सो यू मे नॉट हैव एवरीथिंग, but some of the things will like touch you, तो वो सब ले लो. So that is why you can take it still further heights. अपनी अरिंद चौधरी की एक डिस्कवर डायमंड इन यू बुक है, उसमें से डायमंड आपके अंदर भी है. तो we see 4 carats cut color and clarity. अगर डायमंड का अगर वैल्यू होगा तो we have to see this 4 here. तो परसिवरेंस का है 4th P of डिस्कवरी कट में दिखा है. So I'll share with you on सागर एंड नदी का कॉन्वर्सेशन. सागर पूछे नदी से, कब तक मेरे खारे पानी में बहती रहोगी. सागर पूछे नदी से, कब तक मेरे खारे पानी में बहती रहोगी. तो नदी ने जवाब दिया, जब तक मैं तेरा पानी मीठा ना कर दूं, तब तक मैं तेरे पानी में बहती रहूंगी. सो अपने को कुछ काम जो नहीं हो रहा है ना, वो बार बार करते रहो, एंड वन डे यू चेंज. सागर को मीठा कर दोगी. सो नदी भी परसिवरेंस, डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू. आपको अच्छा भी नहीं तो करते रहना है, एंड ऑलवेज रखना है. हमारे पास समय था परंतु घड़ी नहीं, लेकिन आज हमारे पास घड़ी है परंतु समय है. क्या करें, समय तो टाइम पे था और आज भी समय, पर हम लोग दौड़ के हमें समय का पता नहीं चला. घड़ी देखकर समझने का टाइम ही है, कभी भी किसी को नहीं है, भागते रहता है. अलेक्जेंडर रेस अगेंस्ट टाइम. अलेक्जेंडर ने भी पूरा 33 इयर्स ओल्ड था वो व्हेन ही एक्सपायर्ड. पूरा दुनिया जीतने को जा रहा था, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी ही हैड वन, जीत लिया था. पर अल्टीमेटली वो बोला कि मेरे पास एक चीज कम था, वो समय. तो समय आपको नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स. समय का उपयोग करो, एंड एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग. सो आज जो है ना वही टाइम है आपके पास. अपने फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, पास्ट तो ऑलरेडी हो गया. So be in the present. That is the present given to you, peace of mind. So always be in the present. बाहर और पीछे कुछ देखने का जरूरत नहीं है. And always be, सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, के लिए नहीं जीना है. हम अपने आप को, अगर आपको अच्छा लगे मैं क्या पहनूं, दूसरे को अच्छा लगे नहीं लगे, that is none of our concern. हमें अच्छा लगा वो करना है. कोई भी काम करो, कपड़े पहनो, ये पहनो, जो भी आपको लाइकिंग है. So you always do that. वो सॉन्ग है ना, हर मुश्किल आसान हो जाए, मैं और तुम अगर हम हो जाए. सो आप दोनों अभी मिलकर जो होगा वो हमसे होगा. टुगेदर वी कैन अचीव. अकेले से कोई आदमी नहीं होता है. सो हम लोग को साथ साथ रहना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, लव इज हैप्पी जब वो कुछ देना जानता है. एंड ऑलवेज बी, डोंट बी द ओनर ऑफ लव, ऑलवेज बी द डोनर ऑफ लव. आप खाली पैसा देना नहीं, आपका टाइम, एक्सपीरियंस, वो कुछ भी देता है, दैट इज ऑल्सो मच मोर टू गॉड. सो ईगो इज हैप्पी जब वो कुछ लेना जानता है. अगर आई प्रॉब्लम होगा ना तो आप लेते रहेंगे, मेरे को कुछ मिलेगा क्या. सो मैं नहीं करने का, खाली आप देते जाओ, ऊपर वाला बहुत आपको देगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट इज द रीजन हमारे यहाँ.
और ये बहुत अच्छा है, दिस आर द थिंग्स अपना स्वामी विवेकानंद का। कि किसी ने पूछा स्वामी जी रिचनेस का मतलब क्या है? जनरली इन आवर लेमेन्स टर्म वी हैव मटेरियलिस्टिक, पैसा कमाते जाओ कमाते, दैट इज रिचनेस। पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद डेफिनेशन लिया है, जस्ट लिसन। रिचनेस ज्यादा कमाने में नहीं है, खर्चा करने में भी नहीं है, बचत करने में भी नहीं है, बल्कि आप जब पैसे मिलने पर कहे और फुल स्टॉप लगाए। So when you say you need no more is what the richness is. Richness is not earning more, saving more or spending more. Richness is when you need no more. तो आप कभी फुल स्टॉप लगाता है आपके ऊपर है। एक बार मेरे को एक लड़के ने पूछा क्लासरूम में, सर मैं फुल स्टॉप कभी लगाऊं? तो मैंने कहा जब आप कॉमा कॉमा लगाते हैं तभी मुझे पूछते हैं आप, तभी आप लगा लेते हैं। फुल स्टॉप मैं लगाऊं? आपको ही लगाना है, कभी फुल स्टॉप लगाना है। तो एक बार मेरे दोस्त को मैंने देखा वो कॉमा कॉमा करके बाद आईसीयू में था कॉमा में, तभी मैं सोचा कि स्वामी विवेकानंद का फुल स्टॉप लगाना भूल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ही को लगाना है, आप ही के ऊपर सब है और ये करते रहना है। सो वी विल नाउ, ये लास्ट में अभी शटिंग करेंगे। सो लुक एट द मून टू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड, लुक एट द सन टू सी द पावर ऑफ गॉड, एंड लुक एट द मिरर टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। हम लोग सब श्रृंगार करते खाली आईना देखते, आप बाहर का देखते श्रृंगार, आप अंदर का श्रृंगार होना चाहिए सब में। मनुष्य का अंदर का श्रृंगार जो ज्यादा है। सो व्हेन यू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड, आप तभी पता चलेगा। यू हैव टू सी इनर सेल्फ, आप अंदर झांक कर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हम लोग क्या है, मोर इज लेस हमेशा, एंड नीड के लिए जरूरत करने के लोभी हो गए, महात्मा गांधी कहते हैं। एंड वी आर लिविंग इन विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का चूहे बिल्ली की कहानी है। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी बीवी से डरती है, एंड बीवी वापस चूहे से डरती है। सो ये विशियस साइकिल गोल 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 घूमते रहते हैं। सो हम लोग वो विशियस साइकिल से बाहर आना है हमें, और तभी हमें ये करके मिलेगा। एंड सॉरी एक अजीब सा वर्ड है। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म, बराबर है ना? सो सॉरी का ये वर्ड है, कौन कहता है इसके ऊपर जब ये चलते रहता है। देन वी विल ट्राई टू कम विद द एंड ऑफ द। कहते हैं ना, इंसान घर और लिबास और रिश्ते दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। तो गालिब साहब कहते कि उम्र भर में भूल करता रहा, धूल चेहरे है, कोई नहीं जानता। तो जो भी कोई कामयाब व्यक्ति है, ऑलवेज सी उसके पीछे भी डार्कनेस है। सो तो इसके लिए मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो आप लोग मैं एंड करना चाहता हूँ कि सम फ्रेंड्स आर लाइक रेमंड शूटिंग, वो 1927 से आए और चले गए। सम फ्रेंड्स आर लाइक यूनियन बैंक, 8 AM to 8 PM, सुबह में आए शाम को चले गए। बट सम फ्रेंड्स लाइक यू ISTD फ्रेंड्स आर लाइक LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो फिर मिलेंगे। Thank you for giving me the opportunity. Dalwadi sir. Thank you, sir. Yes, Floor sir. is open for all the participants who has joined us Yes. today. You can share your experience or the feedback for the session, or if you want to have interaction with the Dr. Firdaus sir, please. Yes. Anybody ask questions? पूछिए, कोई भी डाउट नहीं रखना है। हाँ सर, अभी ये कोरोना रोना जो हो रहा है, ये जी। कैसे खत्म होएगा? अभी ये देखिए, ये सब चीज हमें अभी वापस सोचने लगे तो कहते हैं ना, अगर सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, अगर वो क्या सोचेंगे तो हम सोचेंगे, तो वो क्या सोचेगा? जो सोचना है वो सोचने दो, ये हमारी बस की बात नहीं है कब होगा क्या नहीं।
दिस इज व्हाट इज बीइंग डिवाइन. ये कोई सोर्स दिखाई नहीं देता है. वो सब हमें एवरी टाइम वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट. एंड वो जैसा ऊपर वाले का ये है जो रखने कैसा चाहता है. जैसे हम लोग पहले ऊपर आ गए थे, अभी उन्होंने हमें जमीन पे लाया कि भाई तुम ऊपर ऊपर मत उड़ो, अभी जमीन पे भी रहो. हमारा एक्चुअली धरती पे रहना है. मनुष्य ऊपर नहीं उड़ सकता है, पक्षी नहीं है हम लोग के ऊपर उड़े. तो हम लोग बहुत उड़ रहे थे, तो वो कंट्रोल ब्रेक कैसे मारेगा. सो दिस इज द वन वे ऑफ ब्रेकिंग, हाउ टू चेक. तो इन्होंने एक चेक करके रखा है. एंड ये भी जो माहौल है, हमें फैमिली के साथ मिलना जुलना हो गया. कितने जन टाइम नहीं था, उसको अभी टाइम मिलता था. पहले बोलता है छुट्टियां नहीं मिलती थी, अभी छुट्टियां मिल गई तो उसमें भी रोता है. पहले छुट्टी के लिए रोता था, अभी छुट्टी मिली तो उसके लिए भी रो रहा है. तो आदमी मनुष्य कभी भी संतोष नहीं होगा, जितना भी मिलेगा उसको कम होगा. इसलिए बोला मोर इज लेस. तो जैसी हालत में रहे, जैसे है वैसे आनंद में रहो. आनंद ही आनंद, उसमें रहना है. ये सब सोचने का हमारा काम नहीं. कभी होगा क्या, अगर नोबडी कैन प्रेडिक्ट. अगर हम लोग प्रेडिक्ट कर देंगे तो हम खुद खुदा हो जाएंगे, फिर हम लोग भगवान नहीं है. वो जो उनका काम है उन्होंने किया है, करने दो. राइट सर, हेगड़े सर. Firdoshi, I like to say that, Firdoshi, first of all, my highest appreciation for you, because and I have missed. I feel bad that 69 whatever the until now whatever the thing you have taken sittings, and I really missed it. But then you are too good, I tell you. You explained so well. No, because what was last 1 year practically, wherever I go, I hear that people they go on crying. What's going to happen? What is happening now? People are all so much desperate, I tell you, totally frustrated. But then today, I heard so good about this thing, corona thing. Even in the problems also, we can think good. That I learned now, and I'm happy that you are doing a really good, I tell you, something good for the society. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm a good friend. All the best for you. And you go on keeping this all various things now in front of the people or Lionism also. I think it will make a help for everybody. Thank you, sir, once again. Very true. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody? Thank you. Divyang ji, anybody? Yes, sir. Sir, may I? Yes, please, please. Yes. Madam दिखाई नहीं दे रही है. Where is she? सर एक्चुअली इंटरनेट इश्यूज की वजह से कैमरा ऑफ रखा है. No issue. Please continue. Please continue. सर आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप कहाँ से लाते? लाइक फ्रॉम वेयर यू हैव सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी? व्हाट इज द सोर्स बिहाइंड इट? A very good question. I was also like you all, always negativity in my mind. But then I started going to Bhagavad Gita discourses. I also suggest you, कहाँ पे भी ना अपना जैन का जो भी ये होते हैं, कोई डिलीवर करते हैं टॉक, देन भगवत गीता का आप अगर गूगल में सर्च करके कर सकते हैं. वो क्या, भगवत गीता इज नॉट ओनली द बुक फॉर ये सब लोग देखते हैं, प्रणाम करते हैं, रख देते हैं. इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ में कैसे उतारना है. जैसे मैंने आपको कहा ना, माइंड बॉडी द इंटेलेक्ट, वो सब चीज अंदर से लिया हूं मैं कि हाउ इट ट्राइज टू शो यू हाउ टू लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ. वो सब उतारना है. हम लोग खाली पढ़ते हैं, रख के भगवत गीता रख देते. इट इज नॉट दैट ओनली होली स्क्रिप्चर, उसमें से सार लेना है. तो लाइक दैट आई हैव टेकन द सार एंड एवरी डे आई गिव कले. इसमें मेरा फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं है. जो मैंने आपको आज बताया उसमें मेरा इसके अंदर कुछ एक भी नहीं है, खाली डिलीवरी मेरा है. बाकी सब मैं व्हाट्सएप से इधर से गूगल से नहीं लिया, ओनली व्हाट्सएप से आता है. बहुत अच्छे आते हैं कभी सार, तो वो मैं साइड में लगा देता हूँ. चलो एवरीबॉडी इज गेटिंग डेली बेसिस. गुड. ओनली थिंग मेरे माइंड में आता है, जस्ट कीप दैट सेट असाइड. यस सर, कुछ मैसेजेस मैंने भी सॉरी प्लीज पढ़े होंगे ना. हाँ, आपने पढ़े होंगे व्हाट्सएप पे. यस, इसलिए मेरा एक भी चीज नहीं है, खाली डिलीवरी. तो आप भी अच्छे चीज कलेक्ट करके आप बच्चे लोग को किसी को सुना सकते हैं, बिकॉज मैं सब जगह तो जा नहीं सकता है. तो आप लोग भी ऐसे करके कैरी ऑन कर सकते हैं. नथिंग रॉन्ग. सो गुड थॉट्स लेंगे तो गुड एनर्जी आती है. That is to add on to what Firdaus sir has said, to answer the Pooja madam, to spread the positivity and change the mindset in the life of the society. ISTD Anand chapter organizing Friday forum on every Friday, right, where we try to touch upon the various aspects which is required on the demand of these societies, right, and where we have speakers like Firdaus sir, where we get the more positivity, right. So you can attend such sessions wherever you get the chance,
Right, and that's why we are not charging Right. anything to attend these sessions, and this is open for all. And then again we are putting our these sessions to our IST YouTube channel as well. Afterwards the session is over, so if you missed out any session, you can refer your friends to attend it afterwards as well. We'll have last comments from Raju sir, then we'll close this session for day. Raju sir. Okay. No, as such, there is Okay, no sir. Thank comment. you. Thank you very much Thank to you. Dr. Welcome. Firdaus Rao, sir. And as Divyang Bhai also said, that is what the purpose of this Friday forum. And as he said, it is free. So even the speakers also, never charge anything. So we are very grateful to speaker like Dr. Firdaus sir for this selfless services. And lastly, like as the great showman Raj Kapoor says, the show must go on. So corona and such kind of things will not hamper Bas. the spirit of human Don't and think. human. So the show must go on. Very Right? true. Thank Very you. Over to Divyang Bhai. Yeah. We Chal. formally thank you all the participants to join us today. And on next Friday, we'll have topic on confusion to clarity by one of the expert. And you can join us with the same Zoom ID that is 718-151-9916 and password 123456. And you can join us at the same time at 6 o'clock next Friday to have a similar kind of session. And as I said earlier, you can refer your friends to see this video on our ISTD Anand's YouTube channel as well afterwards to learn more about positivity and spread the positivity among this all such so-called negative environment created by the medias and all. And thank you very much our today's speaker, Dr. Firdaus sir, who has brought on us and given Manomanthan to Manoranjan, which is inside view. And thank you all the participants who joined us today. Thank you very much.